اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. My dear students, Assalamu alaikum to all of you. I hope you will be fine at your homes. My today's topic is getting to know plants. Class 6th, subject science. In this chapter, we know about the plants, different kinds of plants. میرے پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ خراب حالات کی وجہ سے یا کورونا وائرس کی مہاماری کی وجہ سے آج کل سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا اپنی فیملیز کو بچانے کے لیے. تو ہم سب گھروں پہ ہیں اور امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ. تو ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو ہدایات ہمیں ان دنوں ملے ہیں کہ بچوں کو آن لائن یا آف لائن کے ذریعے پڑھایا جائے، تو اسی کی یہ ایک کڑی ہے کہ جس کڑی کے تحت ہم آپ تک یہ اپنی ویڈیوز پہنچاتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو غور سے سنیں گے، دیکھیں گے اور آخر تک دیکھیں گے. تو میرے پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد بہت سارے قسم کے پودے ہوتے ہیں. When we goes outside our homes, schools, in open fields, gardens, parks, etc. بچوں، جب ہم کبھی بھی اپنے گھروں سے باہر جاتے ہیں، سکولوں کے باہر جاتے ہیں، کھیتوں میں، باغوں میں یا پارکوں میں جاتے ہیں، وہاں پر ہم مختلف قسم کے پیڑ پودے دیکھتے ہیں. ان میں سے کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں یا کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جو ٹال ہوتے ہیں یعنی لمبے ہوتے ہیں. تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو میڈیم سائز کے ہوتے ہیں یعنی چھوٹے ہوتے ہیں، نہ زیادہ بڑے ہوتے ہیں اور نہ زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی شارٹ ہوتے ہیں یعنی بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں. تو ان میں سے کچھ پلانٹس ایسے ہیں جو سبز ہوتے ہیں، جن کے پتے سبز ہوتے ہیں. کچھ پودے ایسے ہیں جن کے پتے ریڈش کلر کے ہوتے ہیں. تو کچھ پودے ایسے ہیں کہ جو بہت ہی ٹال ہوتے ہیں یا جن کے رنگین فلاورز ہوتے ہیں، جیسے ریڈ فلاورز ہوتے ہیں. تو کچھ پودے ایسے ہیں جن کے فلاورز جو ہے وہ بلیو ٹنی ہوتے ہیں. تو کچھ پودے ایسے بھی ہوتے ہیں جن پہ فلاورز نہیں ہوتے ہیں. تو مختلف قسم کے پودے جو ہے وہ ہمارے ارد گرد پائے جاتے ہیں. تو لیٹ us get to know different parts of any plant. تو چلو ہم مختلف پودوں کے بارے میں یا ان کے مختلف جو حصے ہیں ان کے بارے میں جانیں گے. تو اس میں یہ جانیں گے کہ کس طرح یہ پودے جو ہے ایک دوسرے سے مختلف ہے. تو ان پودوں میں جو ہے ان کے مختلف حصے ہیں، یعنی جیسے روٹس ہیں، سٹیمس ہیں یعنی جڑیں ہیں، ان میں یا تنے ہیں، شاخیں ہیں جن کو برانچز کہا جاتا ہے، اینڈ فلاورز، اور جو پھول ہوتے ہیں ان کو فلاورز کہا جاتا ہے. تو مینلی جو ہے اگر ہم دیکھیں گے ان پلانٹس کو 3 کیٹاگریز میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی ان کو 3 حصوں میں کلاسیفائی کیا گیا ہے. ایک حصہ ہے ان پودوں کا جن کو ہم شربس کہتے ہیں. دوسرا حصہ ہے ان پودوں کا جن کو ہم ہربس کہتے ہیں. تو تیسرا قسم ہے ان پودوں کا جن کو ٹریز ہم کہتے ہیں. چلو میں آپ کو یہ ایکٹیویٹی کے ذریعے دکھاتا ہوں کہ ہمارے پاس بہت سارے پودے ہوتے ہیں جن کو ہم ہربس کہیں گے، یا ہمارے پاس بہت سارے پودے ایسے ہیں جن کو ہم شربس کہیں گے. ہمارے پاس بہت سارے پودے ہیں جن کو ہم ٹریز کہیں گے. تو دیکھو بچوں، یہاں پہ میں آپ کو کچھ پودوں کو دکھاؤں گا. یہ پودے ہیں
जो बिल्कुल छोटे होते हैं, यानी वो पौधे जो हमारे साइज़ से छोटे हो, सब्ज़ हो और जिनके ग्रीन लीव्स होते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये सारे ग्रीन प्लांट्स है, बिल्कुल छोटे छोटे पौधे हैं जो आपको इस वीडियो में नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल मैं आपको और भी पौधे दिखाऊंगा जिनको हम खरबूज कहते हैं। ये देखिए बच्चे, ये सारे जो है इनको हम ग्रीन प्लांट्स कहते हैं या इनको हर्ब्स कहते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, हमारे से बहुत छोटे हैं और इनके पत्ते सब्ज़ होते हैं। अब देखिए इनके जो स्टेम है ये बहुत नरम होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं। अगर हम इनको तोड़ना चाहेंगे तो आसानी के साथ ये टूट जाते हैं। ये देखो बच्चे, ये आसानी के साथ टूट जाते हैं। इसी तरह मैं आपको और भी कुछ दिखाऊंगा, जैसे घास है, घास भी बिल्कुल इनको हर्ब्स कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत नरम होते हैं और हमारी साइज़ से छोटे होते हैं, तो टेंडर होते हैं, सख्त नहीं होते हैं। ये देखिए बच्चे, तो ऐसे पौधे जो काफ़ी नरम होते हैं, जिनके तने नरम होते हैं और हमारे साइज़ से छोटे होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया कि ये बिल्कुल छोटे होते हैं, ऐसे पौधों को, इनको, ये पौधे जो देख लीजिए आप, ये जिनको मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, तो इन पौधों को हर्ब्स कहा जाता है, क्योंकि ये काफ़ी छोटे होते हैं, नरम होते हैं और तोड़ना चाहेंगे हम इनको तो आसानी के साथ हम इनको तोड़ सकते हैं। इनको हर्ब्स कहा जाता है। तो अब मैं आपको श्रब्स बताऊंगा कि श्रब्स क्या होते हैं। श्रब्स जो है ये हमसे थोड़ा लंबे होते हैं, टालर होते हैं हमसे, और इनका जो तना है ये थिक होता है, थोड़ा मोटा होता है, ज़्यादा मोटा नहीं, थोड़ा मोटा होता है और सख्त होता है। हम इनको आसानी के साथ तोड़ नहीं सकते। ये देखो बच्चे, ये पौधा जो है ये हमसे लंबा है, बिल्कुल आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि ये पौधा हमसे लंबा है, खासकर मुझसे लंबा है। ये देखो, ज़्यादा लंबा भी नहीं है लेकिन मुझसे लंबा है, और इसकी शाखें जो है ये थोड़ा थिक है, मोटी है। इसका तना जो है ये भी मोटा है। अगर हम इसको तोड़ना चाहेंगे तो आसानी के साथ तोड़ नहीं सकते हैं। तो ऐसे पौधे जो हमसे लंबे हो और थोड़ा मोटे हो और सख्त भी हो, तो ऐसे पौधों को श्रब्स कहा जाता है। तो अब मैं आपको ट्रीज़ के पास ले जाता हूँ। देखो बच्चे, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये ट्रीज़ है, ये काफ़ी ह्यूज होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं, इनके शाखें भी बड़ी बड़ी होते हैं और इनका तना जो है ये काफ़ी चौड़ा होता है, यानी थिक होता है, मोटा होता है। ये देखो बच्चों, मैं आपको दिखाऊंगा, ये एक वॉलनट प्लांट है। तो इसकी शाखें देखो आप, इसकी शाखें जो है वो ज़मीन से काफ़ी ऊपर निकल जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। ये देखो, मैं आपको दिखाऊंगा इसकी शाखें, ये देखो कहाँ से शाखें इसकी निकली, आप इसकी जड़ें देखो कहाँ पे है। तो ये काफ़ी लंबे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं और बहुत सख्त होते हैं, बहुत मोटे भी होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को ट्रीज़ कहा जाता है जो काफ़ी सख्त होते हैं। तो चलो बच्चों, हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं। इस एक्टिविटी के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि ये इन प्लांट्स के बारे में, तो थोड़ा सा आपको भी समझ आ जाएगा। हम अपने ही कॉपी पे कर लेते हैं एक एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के ज़रिए मैं आपको दिखाऊं कि ये जो है किस तरह आपको समझ आएगा। बहुत आसान तरीका है। यहाँ पे मैं आपको एक कॉलम दिखाता हूँ। इस कॉलम में मैंने लिखा है सीरियल नंबर, नेम ऑफ द प्लांट, कॉलम नंबर फर्स्ट है, इसके नीचे लिखा मैंने हाइट, कॉलम नंबर सेकंड है स्टेम, इसके नीचे लिखा मैंने ग्रीन, टेंडर, थिक, हार्ड। कॉलम नंबर थर्ड जो है इसमें लिखा मैंने वाई डू द ब्रांचेस अपीयर,
यानी जिस पौधे का नाम हम लिखेंगे, इसकी खासियत लिखेंगे हम, तो इसके बारे में हम लिखेंगे कि इसके जो शाखें हैं ये कहाँ से ज़ाहिर हो जाते हैं। कॉलम नंबर 4 जो है, तो इसमें हमें लिखनी है कैटेगरी, यानी ये किस कैटेगरी में फॉल करता है। यानी ये जो पौधा है जिसके बारे में हम लिखेंगे, तो ये किस कैटेगरी में आता है। देखो बच्चों, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैटेगरी। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि पहली कॉलम में हमने लिखा है, ये देखो बीन्स। बीन्स जो है इसकी हाइट यानी स्मॉलर देन मी, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, आप ध्यान रखेंगे, SMALL स्मॉलर देन मी, यानी मुझसे छोटा होता है ये। यानी इसकी जो शाखें हैं, ये इसका ये जो होता है ये ग्रीन कलर का होता है। इसकी जो ये तना होता है ये भी बिल्कुल नरम होता है, थिक यानी मोटा मत होता है, तो मोटा ये बिल्कुल नहीं होता है। हार्ड मत होता है, बिल्कुल नहीं होता है। एट द बेस ऑफ द सिस्टम, यानी इसके जो ये शाखें हैं ये कहाँ से निकलते हैं, बिल्कुल इसके नीचे से ही निकलते हैं। यहाँ पे हम इसको येस लिखते हैं। हायर अप ऑन द सिस्टम, ऊपर मत निकलते हैं, तो बिल्कुल नहीं निकलते हैं। तो किस कैटेगरी में आता है, इसको हम हर्ब कहते हैं। तो बिल्कुल ये हर्ब में आता है। अब दूसरा है हमारे पास लीमान। मैंने आपको अभी एक पौधा दिखाया, तो ये लीमान की तरह होता है। तो जितना लीमान यानी जिसको हम यह श्रब्स कहते हैं, तो ये टॉलर, इसको हम कहेंगे टॉलर देन मी, यानी मुझसे बड़ा ही होता है। तो ग्रीन नहीं होता है, इसका तना बिल्कुल ग्रीन नहीं होता है। टेंडर यानी नरम भी नहीं हो, सॉरी यहाँ पे मैंने येस लिखा, तो बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे भी नहीं होता है। थिक होता है, मोटा होता है, तो यहाँ पे हम इसको येस लिखेंगे। तो हार्ड होता है, यहाँ पे हम इसको येस लिखेंगे। तो एट द बेस ऑफ द सिस्टम, यानी इसके जो ये शाखें जो है ये बिल्कुल तने से निकलते हैं, नहीं थोड़ा ऊपर से निकलते हैं, तो इसको हम येस लिखेंगे। तो हायर अप ऑन द सिस्टम, यहाँ पे हम इसको येस नहीं लिखेंगे, सॉरी, यहाँ पे हम इसको थोड़ा येस लिखेंगे, थोड़ा ऊपर से इसको शाखें निकलती हैं, ये देखो। तो इसको हम श्रब कहते हैं, SHRUB, श्रब कहते हैं। तो इसी तरह हमारे पास एप्पल प्लांट है। तो बिल्कुल मैं आपको एप्पल प्लांट भी पहले दिखाऊंगा, उसके बाद लिखवाऊंगा। ये देखो, ये एप्पल प्लांट है बेटा, बिल्कुल इसमें शगुफे आज कल निकले हुए हैं। ये देखो, मैं आपको इसकी शगुफे भी दिखा लेता हूँ। ये देखो, बिल्कुल आपको इसके शगुफे नज़र आएंगे। ये एप्पल प्लांट है। तो एप्पल प्लांट की ज़िक्र मैंने यहाँ पे की है। तो बिल्कुल एप्पल प्लांट जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये एप्पल प्लांट जो है, अब हम इसकी खासियत देखते हैं, इसमें क्या खासियत होती है। तो ये मच टॉलर देन मी, मच टॉलर देन मी, यानी मुझसे काफ़ी लंबा होता है। ग्रीन होता है, बिल्कुल नहीं होता है। टेंडर नरम होता है, बिल्कुल नहीं होता है। थिक मोटा होता है, येस हाँ होता है, मोटा भी होता है। हार्ड यानी बिल्कुल हार्ड भी होता है, यानी सख्त भी होता है। एट द बेस ऑफ द सिस्टम, यानी इसके शाखें जो है वो नीचे तने से ही निकलते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। हायर अप ऑन द सिस्टम, यानी बिल्कुल ऊपर से इसके शाखें निकलते हैं। तो यहाँ पे हम इसको येस लिखेंगे। और ये किस कैटेगरी में आता है, तो इसको हम ट्री कहते हैं।
यानी ट्रीज़ की कैटेगरी में बिल्कुल आता है। तो इस एक्टिविटी से मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये पूरी तरह समझ आया होगा कि हर्ब्स किन प्लांट्स को हम कहते हैं, श्रब्स किन प्लांट्स को हम कहते हैं, और ये ट्रीज़ किन प्लांट्स को हम कहते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि श्रब्स, ये हर्ब्स जो है, हर्ब्स हम उन पौधों को कहते हैं जो बिल्कुल हमसे छोटे होते हैं, नरम होते हैं, तोड़ना हम चाहेंगे आसानी से वो टूट जाते हैं। तो ऐसे पौधों को हम ये हर्ब्स कहते हैं। और श्रब्स हम उन पौधों को कहते हैं जो हमसे थोड़ा बड़े होते हैं, थोड़ा सा ये थिक होते हैं यानी मोटे होते हैं, हार्ड होते हैं, और थोड़ा सा ये सख्त होते हैं। और ये ऐसे पौधे, इनको हम श्रब्स कहते हैं। और ट्रीज़ आपको पता ही है कि ट्रीज़ काफ़ी लंबे होते हैं, हमसे बहुत लंबे होते हैं। तो वो उनका जो ट्रंक है यानी उनका जो स्टेम जो है वो बिल्कुल मोटा होता है, बहुत मोटा होता है। तो जैसे मैंने आपको ये तस्वीर में दिखाया भी है, तो इस वीडियो में, तो काफ़ी मोटा होता है उनका ट्रंक, और इसके साथ साथ वो काफ़ी सख्त भी होते हैं। तो इनकी शाखें जो है ये बिल्कुल ये इनका जो ट्रंक है उस ट्रंक के ऊपर से निकल जाते हैं। तो ऐसे पौधों को हम ट्रीज़ कहते हैं। तो आज के लिए काफ़ी इतना ही बच्चों। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपने अच्छी तरह समझा होगा, और आप अपने घरों में किताबें भी देखकर आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाएगा। और मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।